In a short while from now, the Honorable DC of Dhanbad, Shri Sandeep Singh will arrive here. We await his arrival, and with his arrival will begin the today's ceremonious Independence Day celebration. धन्य सुभग स्वर्णिम दिन तुमको, धन्य सुभग स्वर्णिम दिन तुमको, धन्य तुम्हारी शुभ घड़ियां। धन्य सुभग स्वर्णिम दिन तुमको, धन्य तुम्हारी शुभ घड़ियां, जिस दिन पराधीन भारत मां की खुल गई गुलामी की हथकड़ियां। भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी, भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे। सत्य अहिंसा के संबल से, सत्य अहिंसा के संबल से भाग्य हमारे फिर जागे, भाग्य हमारे फिर जागे। जय जय की ध्वनि से गुंजित, जय जय की ध्वनि से गुंजित नभमंडल भी था डोल उठा। नवजीवन पाकर मातृभूमि का, नवजीवन पाकर मातृभूमि का कण कण भी था बोल उठा, कण कण भी था बोल उठा। श्रद्धा से शत शत प्रणाम, श्रद्धा से शत शत प्रणाम उन देश प्रेम दीवानों को, अमर शहीद हुए जो, अमर शहीद हुए जो, कर न्योछावर अपने प्राणों को, कर न्योछावर अपने प्राणों को। जी हां, उन्हीं शहादतों के बदौलत आज हम सभी अपने आजादी के 75वें वर्ष के इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, सुधी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। It is a ceremonious day for every Indian, as this serene morning we celebrate the 75th anniversary of our independence. Ladies and gentlemen, once again a joyful 75th Independence Day greetings to one and all. Soon the air will resonate with bugle calls and commands, filling us with patriotic fervor. Once again, let me remind you that we have 8 platoons today participating in today's parade. The first platoon is that of CISF, commanded by Sub-Inspector Bharat Singh. The second platoon is that of Railway Protection Special Force, commanded by Sub-Inspector Kundan Kumar. The third is that of Jharkhand Armed Police and is being led by Sub-Inspector Ramayan Murmu. The fourth is the District Armed Police Men, that is being headed by Sergeant Amit Kumar Mato. The fifth is District Armed Police Women's Wing, which is being commanded by Sub-Inspector Roma Kumari. The sixth being the Indian Home Guard, led by Company Commander Kailash Ram. The seventh, the NCC Boys, commanded by Senior Under Officer Sudhanshu Gupta. The last platoon, the 8th platoon, is that of the NCC Girls, which is under the command of Under Officer Shweta Mishra. Apart from the 8 platoons, the band today will be played by the students of Coalfield School, Saraidhila, and the national anthem too will be sung by the girls of the same school. Apart from all these, we are grateful to Sergeant Satyendra Prasad, Head Constable Laleshwar Ram, and Shri Anil Thakur for the arrangement and tying of the national flag.
Ladies and gentlemen, brace yourselves as in a moment from now, the Honorable DC of Dhanbad, Shri Sandeep Singh will arrive here, and with his arrival will begin the ceremonious day. Do maintain the COVID protocol. Please put on your masks on your nose, not below your nose. And please do maintain the social distancing. We being the anchors, we are bound to put our masks below our nose, but you as an audience are requested to please put up your masks, cover your nose, and maintain the social distancing. आज के इस समारोह में हम सम्मानित करेंगे उन कोरोना योद्धाओं को, उन कोरोना कर्मवीरों को जिनकी बदौलत स्वस्थ धनबाद की परिकल्पना संभव है। जिन कोरोना योद्धाओं को आज सम्मानित किया जाना है, एक निवेदन, आप यदि यहां उपस्थित हैं तो मंच के पास चले आएं। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, आज के इस समारोह में आप कोरोना के सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में शामिल हों और अनुशासित तरीके से आज के इस समारोह में आप अपनी गरिमामय उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विनम्र बधाई। धनबाद के इस ऐतिहासिक रणधीर वर्मा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप सभी सुधी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के दिन हम सभी यहां उपस्थित हैं अपने उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए जिनकी
शहादत के बदौलत ही हम आजादी के इस स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। सरायडेला और स्टील गेट में लेडीज मीट लाइव चल रहा है और डीसी साहब पे ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक लाइव चल रहा है। Ladies and gentlemen, please brace yourselves as we can hear the hooter. So, the Honorable DC of Dhanbad is arriving at the venue. And let me remind you that today's program is being live telecasted on Jhargov TV. You could see it on the screens that has been put up at Steelgate and Bankmore. Also, you could see the live telecast on the Twitter handle and the Facebook live of the Dhanbad District Administration. जी हाँ, आज के इस समारोह का, आज के इस कार्यक्रम का आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं झारगांव टीवी पे, यूट्यूब पे। Ladies and gentlemen, the Honorable DC of Dhanbad has arrived amongst us. श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 8 टुकड़ियों की परेड अवेशन के लिए तैयार है। This was the Chief Parade Commander, Sergeant Major Deepak Kumar Prasad, inviting the respectable SSP of Dhanbad and the Honorable DC of Dhanbad for the inspection of the parade. The Honorable DC of Dhanbad, accompanied by the respectable SSP of Dhanbad, make their way towards the platoons standing in alertness. Ladies and gentlemen, the platoons stand in attentiveness as the inspection vehicle slowly approaches them. The 8 platoon commanders, along with their respective platoons, are ready to greet the Honorable DC Shri Sandeep Singh and the respectable SSP of Dhanbad Shri Sanjeev Kumar with their military salutes. There are 8 platoons. The first platoon is that of CISF, being commanded by Sub-Inspector Bharat Singh. The second platoon is that of RPSF, being commanded by Sub-Inspector Kundan Kumar. The third platoon is of Jharkhand Armed Police number 3 and is being led by Sub-Inspector Ramayan Murmu. The fourth platoon being of District Armed Police Men, led by Sergeant Amit Kumar Mahato. The fifth of DAP Women's Wing, led by Sub-Inspector Roma Kumari. The sixth by the Indian Home Guard, being headed by Company Commander Kailash Ram. And the 7th one by NCC Boys Cadet,
being led by Senior Under Officer Sudhanshu Gupta and the last one of NCC Girls by Under Officer Ms. Shweta Mishra. जी हाँ, सबसे पहला प्लाटून CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो वर्ष 1969 से अस्तित्व में आकर आज सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा कर रही है। दूसरा प्लाटून RPSF रेलवे सुरक्षा विशेष बल रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा प्लाटून आपके समक्ष जैप झारखंड सशस्त्र पुलिस बल का पूरे झारखंड राज्य की विधि व्यवस्था कायम रखना इनका उद्देश्य जिसे इनके द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। चौथा प्लाटून जिला सशस्त्र पुलिस के पुरुष जवान जिनकी बदौलत हम धनबाद नगर वासियों को अमन शांति का एहसास होता है। पांचवा प्लाटून जिला सशस्त्र पुलिस की महिला प्लाटून जो जिले की कानून व्यवस्था को कायम रखने में लगातार अग्रसर है। आपके समक्ष छठा प्लाटून गृह रक्षा वाहिनी, इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई और तभी से अर्धसैनिक बल के रूप में कानून व्यवस्था कायम करने में सहयोग कर रही है। इसी क्रम में जो आपके समक्ष वो NCC बॉयज राष्ट्रीय कैडेट कोर जिनका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, जो छात्र छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाता है। और अंत में जो आपके समक्ष 8वीं प्लाटून खड़ी है वो NCC गर्ल्स की है। ये राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं की प्लाटून है जो पूरी तन्मयता के साथ देश सेवा के लिए संकल्पित है। Recalling and remembering our heroic past is extremely important. Also, equally important is to look into the future. It is the past that shows us the path to strategize the future. The scars of the past have the power to smoothen our present as well as our future. It is thus often said that if we do not remember our past, we are condemned, we are doomed to repeat it. Ladies and gentlemen, it is time now for the national salute as the Honorable DC of our district along with the respectable SSP of our district make their way back to the saluting base. He will do है नमन वीर शहीदों को, है नमन वीर शहीदों को, जब तक अपना अस्तित्व है सूरज सा दिव्य प्रकाशमयी, सूरज सा दिव्य प्रकाशमयी। सावधान। all are requested to ready themselves to pay their reverence to the motherland. राष्ट्र सैल्यूट, सलामी शास्त्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। समझा क्रम में मध्य से
इसके लिए announce करें। The district of Dhanbad now requests the Honorable DC of Dhanbad, Shri Sandeep Singh, to inspire us and address us with his motivational words. Sir, please. पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह के आज के इस कार्यक्रम पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया के मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह अवसर इसलिए भी और अति विशिष्ट हो जाता है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और स्वतंत्र भारत के रूप में हमारा राष्ट्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन हमारे पूज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों, उनके अनगिनत संघर्षों, त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक खुले राष्ट्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज के अवसर पर हम उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐसा भी शुभ दिन है जब एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में कैसे हम अपना अधिकतम योगदान दे सकें, अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें, उनका समीक्षा करें, वैसा एक संकल्प लेने का भी दिन है। आइए आज हम सब पुनः एक बार संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी शक्ति व लगन से सहयोग दें, वह एक सशक्त व समृद्ध भारतवर्ष के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। धनबाद जिला प्रशासन आप सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, आमजनों के सहयोग से जिले को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए पूर्णतः कृत संकल्प है। जिला प्रशासन द्वारा विकास की इस यात्रा में विशेष रूप से अपेक्षाकृत पीछे रह गए वंचितों, पिछड़ों, उनको केंद्र बिंदु में रखकर विकास की योजनाओं की प्लानिंग, उनका कार्यान्वयन और कैसे आखिरी व्यक्ति तक सरकार की, समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल सके, इसका सदैव प्रयास किया जाता है। एक संक्षिप्त रूपरेखा में धनबाद जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के जो कार्य किए जा रहे हैं आज के इस अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम सभी को मालूम है कि पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के कारण सिर्फ हमारा जिला, राज्य या राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा वर्ष इससे बुरी तरह प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार, भारत सरकार व अन्य स्रोतों से प्राप्त दिशा निर्देशों, सुझावों के आलोक में इस महामारी से निपटने में सभी लोगों के सहयोग से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लोगों को इस महामारी के समय स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकें, उसकी पूरी तैयारी व उसका पूरा प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिले में कुल 8 सरकारी, 21 गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कोविड केयर सेंटर्स उपलब्ध हैं। लगभग 200 आईसीयू बेड्स जिले में कार्यरत हैं और 650 हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, ताकि कोरोना से संक्रमण की स्थिति में लोग जिन्हें इलाज की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको समय से और पर्याप्त सुविधाएं हम लोग मुहैया करा सकें। जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को चिन्हित करने के लिए RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट सहित अनेक प्रकार के डायग्नोस्टिक, इलाज की व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसी क्रम में धनबाद जिले में हम लोग अब तक लगभग 8.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट कर चुके हैं और उसमें से जो संक्रमित हुए हैं उनके इलाज व आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कोरोना वैक्सीन इस महामारी से लड़ने में हम लोगों का एकमात्र और सबसे कारगर हथियार है। समय समय पर प्रशासन लोगों से अपील करता है कि आप
अपनी समय आने पर, योग्यता होने पर कोरोना वैक्सीन अवश्य लें। धनबाद जिले में अभी तक हम लोग कुल मिलाकर लगभग 8 लाख लोगों को वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं और आने वाले समय में प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक को यथाशीघ्र वैक्सीनेशन पूरा कराया जा सके, वैसा प्रशासन का प्रयास है। धनबाद जिला एक खनिज बाहुल्य क्षेत्र है और खनन कार्यों के एवज में एक बड़ी राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को प्राप्त होती है। CSR के माध्यम से बहुत सारी अधिष्ठापित कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग विकास के कार्य करती हैं। DMFT व CSR से अब तक धनबाद जिले में सदर अस्पताल, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल व अन्य अस्पतालों में कुल मिलाकर लगभग 4200 लीटर पर मिनट के PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की 6 यूनिट्स की अधिस्थापना की गई है। विभिन्न अस्पतालों में कुल 220 ICU बेड्स का निर्माण, वर्तमान में पीडियाट्रिक ICU बेड्स का निर्माण, चूँकि भविष्य में बच्चों को भी कोरोना संक्रमण की संभावनाएं अलग अलग स्रोतों से WHO या जो अन्य माध्यम है उनके द्वारा बताई जा रही है, तो उसके लिए प्रीएम्प्टिव तैयारी करते हुए पीडियाट्रिक ICU बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, इनका निर्माण भी DMFT मद, CSR मद व राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से किया जा रहा है। चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों, पैरामेडिक्स, ANM, GNM, नर्सेज, इनकी कमी को देखते हुए धनबाद जिले में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से लगभग 200 पैरामेडिकल कर्मियों, डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, इनकी नियुक्ति की है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। 250 स्कूल्स जिनको लीडर स्कूल के रूप में चिन्हित करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में मॉडल विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए, उसकी कार्य योजना तैयार कर उसके कार्यान्वयन पर काम किया जा रहा है। 130 स्कूल्स जिसमें स्मार्ट क्लासेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज, इनको प्रोवाइड कराने का काम किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर बच्चों को IT और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनकी शिक्षा बेहतर तरीके से दी जा सके। 500 नए आंगनवाड़ी केंद्र भवनों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करते हुए वहाँ पर मशीन, उपकरण, बच्चों के लिए आवश्यक फर्नीचर, पोशाक व अन्य कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धान अधिप्राप्ति योजना के तहत इस वर्ष में जिले को 70,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। आप सभी के साथ ये साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उस लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 135% अधिक लक्ष्य प्राप्त करते हुए लगभग 94,000 क्विंटल धान की किसानों से अधिप्राप्ति कर और समय से उनको उनके भुगतान मूल्य और बोनस आदि का भुगतान किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी को समय से गुणवत्तापूर्ण व पूरी मात्रा में राशन उपलब्ध हो सके, इसका कार्यान्वयन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से, सखी मंडल ग्रुपों से संबद्ध कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अलग अलग ऋण की योजनाओं के तहत लोगों को, समूहों को ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत धनबाद जिले में अब तक लगभग 32,000 लाभुकों को कुल 214 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को, जिसमें लगभग 3,000 महिला समूह जो एक्टिवली अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके बीच 148 करोड़ की राशि वितरित की गई है। PM स्वनिधि योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, उनके ऋण की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए लगभग 322 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा, दिव्यांग, वृद्धजन और विभिन्न श्रेणियों में वैसे लाभुक जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको चिन्हित करते हुए कुल 1,42,000 लाभुकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है। इसके माध्यम से प्रयास जिला प्रशासन द्वारा ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में सभी के पास अपना निजी पक्का मकान हो। और इसी कड़ी में अब तक धनबाद जिले में लगभग 35,500 लोगों को आवास बनाकर, पूर्ण कर उनको गृह प्रवेश करा दिया गया है।
लक्ष्य के विरुद्ध शेष जो आवास बचते हैं उनमें तेजी से कार्य करते हुए उनके कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। पीएम किसान योजना अंतर्गत धनबाद जिले में लगभग 97,000 किसानों को चिन्हित करते हुए उनको योजना का लाभ दिया गया है और ऐसे सभी किसानों को केसीसी ऋण योजना से भी संबद्ध करने के क्रम में अब तक हम लोग लगभग 68,000 किसान लाभुकों को, बिरसा किसान लाभुकों को इस योजना का लाभ दे चुके हैं और अन्य जो शेष किसान बच रहे हैं उनसे आवेदन प्राप्त करते हुए उनके आवेदनों को बैंक में जमा कर उनके कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत वैसे किसान जो किसी कारण से अपना पास्ट में उन्होंने जो लोन लिया है, ऋण लिया है, उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, उनको चिन्हित करते हुए उनके लोन माफ़ी की कार्यवाही की जा रही है। उनसे आवेदन प्राप्त करते हुए और बैंकों से समन्वय कर धनबाद जिले में अब तक लगभग 20 करोड़ की लोन माफ़ी, ऋण माफ़ी किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। पेयजल आपूर्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जिला प्रशासन लगातार डीएमएफटी फंड से और राज्य सरकार की पेयजल आपूर्ति योजनाओं के जो विभिन्न राशियां हैं उनके माध्यम से आने वाले समय में प्रत्येक घर का टैप वाटर कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति योजना से संबद्धता हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके तहत कई 100 करोड़ की योजनाएं डीएमएफटी से अलग अलग क्षेत्रों में कार्यान्वित हो रही हैं और यथाशीघ्र उनको पूरा करने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन से लेकर गर्भवती माताओं, धात्री माताओं व 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में पोषक राशन का वितरण लगातार केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति की योजनाएं समाज कल्याण व सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा, जिसमें प्री मैट्रिक व प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत लगभग 1,19,000 छात्रों को चिकित्सा अनुदान के तहत वैसे लोग जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है लेकिन राशि की कमी की वजह से उनको आर्थिक दिक्कत हो रही है, उनको सरकार की इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लगभग 16,200 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण, प्रधानमंत्री मातृ योजना, वंदना योजना का कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लगभग 5300 बालिकाओं को, बच्चियों को चिन्हित करते हुए उनके सशक्तिकरण की और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की कार्रवाई जिला द्वारा की जा रही है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार JRDA धनबाद जिले में एक राज्य सरकार द्वारा गठित अथॉरिटी है जिसका उद्देश्य झरिया व आसपास के क्षेत्रों में खनन कार्यों की वजह से जो लोग प्रभावित हैं, जहां पर चाहे आग लगने की वजह से या किसी अन्य कारण से उनको दूसरी जगहों पर रीसेटल करने की, बसाने की आवश्यकता है, उनको चिन्हित करते हुए ऐसे लगभग 595 पोटेंशियल साइट्स पूरे धनबाद जिला में चिन्हित कर और 1.5 लाख से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने का कार्य JRDA अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में हम लोग BCCL के साथ समन्वय कर लगभग 1000 एकड़ ज़मीन पर अभी तक 6,500 आवास फ्लैट्स बनाकर लोगों को जो विस्थापित होने वाले हैं, खनन कार्यों से प्रभावित हैं, उनको शिफ्ट कर चुके हैं। शेष अन्य 12,000 इकाइयों का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष कोरोना महामारी से हम लोग पिछले 1.5 साल से लगातार जूझ रहे हैं। प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लोगों के सहयोग से, उनके समन्वय से लगातार इससे निपटने की कार्यवाही की जा रही है। वैक्सीनेशन आज के समय में इससे निपटने का सबसे कारगर उपाय है और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से सभी धनबाद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जहां भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहे हैं, आप उत्साहपूर्वक आएँ वहां पर। वैक्सीन प्रशासन के पास उपलब्ध है, राज्य सरकार द्वारा दी गई है। हम लोग समय से सुनिश्चित करेंगे कि सभी को वैक्सीन की उपलब्धता हो, उनको वैक्सीन उपलब्ध करा सकें। आज के इस अवसर पर हम लोग उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिसमें डॉक्टर्स, पारा चिकित्सक, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, VLEs, चिकित्सा पदाधिकारी
पुलिस बल व पैरामिलिट्री के जवान, विभिन्न सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारियों और विभागों के कर्मी, जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर आम लोगों के साथ कार्य करते हुए अपना सर्वोच्च इस बात के लिए दिया है कि लोगों को कोरोना से कम असुविधा हो, बेहतर हम लोग उनको सुविधा दे सकें। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूं। मीडिया के मित्रों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय में लोगों तक जानकारी, सूचना का आदान प्रदान वो पहुंचाने में रही है। क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उनको प्रशासन के, सरकार के संज्ञान में लाने में मीडिया की महती भूमिका रही है। तो आज के इस अवसर पर मैं मीडिया के मित्रों को भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनका जो योगदान है, उसको मैं नमन करता हूं, उसको याद करता हूं। पूरे ज़िले में विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, उसके अपराध नियंत्रण व क्षेत्रों में शांति स्थापित हो सके, इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस की पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं। पुनः एक बार 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के आज के इस अवसर पर अपने सभी वीर शहीदों, पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनके बलिदान व त्याग को एक बार हम लोग फिर से याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी एक बार ये प्रण लें, ये संकल्प लें कि समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपना जो यथाशक्ति योगदान हम दे सकें, आपसी भाईचारा व एकता कायम रखते हुए वो दें, ताकि राष्ट्र निर्माण में अपने नागरिक होने के नाते अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन हम सभी कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। Thank you, sir. The district of Dhanbad is grateful to your dynamic administration and visionary guidance, sir. Time for the dispersal of the parade. श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस पर परेड की कार्यवाही समाप्त हुई। आगे का आदेश। This is the Chief Parade Commander, Sergeant Major Deepak Kumar Prasad. With the permission of the Honorable DC to disperse the parade. विसर्जन के लिए अंदर को मुड़ो, दरबार मुड़, दरबार को, दरबार से चल। Armed forces are not just mere groups of khaki-clad soldiers fighting enemies, but a group of courageous, disciplined, loyal, dutiful, selfless, and committed men and women who work as a team to accomplish tasks. For we civilians, they symbolize valor, integrity, and teamwork. हेलो प्राणों की आहुति देकर तुमने आजादी के स्वप्न साकार किए। नतमस्तक हैं हम ऋणी हैं, तुमने ऐसे उपकार किए। अब आज के इस समारोह में हम सम्मानित करेंगे धनबाद के कोरोना योद्धाओं को, कोरोना कर्मवीरों को, जिनकी बदौलत स्वस्थ धनबाद की परिकल्पना संभव हो पाई है। इस क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्री सियाराम राय, सहायक शिक्षक श्री सियाराम राय। आदरणीय उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन, इन कोरोना योद्धाओं को अपने कर कमलों से प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटोस प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय मंचासीन अतिथियों से भी सादर निवेदन, इन कर्मवीरों का सम्मान। श्री सियाराम राय,
जो सहायक शिक्षक हैं और जिले में कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत हैं, श्री सियाराम राय। इसी कड़ी में दूसरा नाम है श्री किशोर तिर्की। श्री किशोर तिर्की जो इंस्पेक्टर हैं, श्री किशोर तिर्की। श्री किशोर तिर्की, श्री किशोर तिर्की। इसी क्रम में अगला नाम है श्री नीतीश अश्विनी। श्री नीतीश अश्विनी। दर्शक दीर्घा से तालियों की कमी हो रही है, आप जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। श्री नीतीश अश्विनी जो धनबाद के कोरोना योद्धा हैं। इसी क्रम में अगला नाम है श्री भावेश कुमार यादव। श्री भावेश कुमार यादव। श्री भावेश कुमार यादव। आप सभी से निवेदन, आप तालियों से लगातार इनका उत्साहवर्धन करें। ये हम ही सभी की स्वास्थ्य के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और इसी क्रम में अगला नाम है श्री नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार। हमारे अगले कर्मवीर हैं श्री रवीश चंद्र सिन्हा। श्री रवीश चंद्र सिन्हा जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं इन कठिन परिस्थितियों में भी। श्री रवीश चंद्र सिन्हा। श्री रवीश चंद्र सिन्हा। और इसी क्रम में अगला नाम है मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी। मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी ये हेल्थ मैनेजर हैं। आप सभी दर्शकों से सादर निवेदन, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। इन्हीं के बदौलत स्वस्थ धनबाद की कल्पना की जा सकती है और आप इन्हीं के सम्मान में यदि तालियों से उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और इसी क्रम में अगला नाम है श्री हीरालाल रजक। श्री हीरालाल रजक जो हेल्थ मैनेजर हैं और लगातार अपनी सेवाओं से हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। श्री हीरालाल रजक। श्री हीरालाल रजक। इसी क्रम में अगला नाम है श्री सौरभ सिंह। श्री सौरभ सिंह। श्री सौरभ सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर जो लगातार इन कठिन परिस्थितियों में, इन संकट की घड़ियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में अगला नाम है मोहम्मद नईम अंसारी। मोहम्मद नईम अंसारी। मोहम्मद नईम अंसारी कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नईम अंसारी। इसी क्रम में अगला नाम है श्री डेनियल बेग। श्री डेनियल बेग जो एचई हैं। श्री डेनियल बेग। श्री डेनियल बेग। इसी क्रम में अगला नाम है डॉक्टर शंकरी। डॉक्टर शंकरी। जोरदार तालियों से आप इनका उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर शंकरी जो कोरोना काल में महिलाओं की सहभागिता को प्रदर्शित करती हैं। अगला नाम है श्री धनेश्वरी कुमार। श्री धनेश्वरी कुमार। श्री धनेश्वरी कुमार। इसी क्रम में अगला नाम है मोहम्मद मनोवर आलम।
मोहम्मद मनोवर आलम, मोहम्मद मनोवर आलम। इसी क्रम में हमारे अगले कोरोना योद्धा हैं श्री शत्रुघ्न पासवान, श्री शत्रुघ्न पासवान, श्री शत्रुघ्न पासवान। इसी क्रम में अगला नाम है श्री अनिल कुमार, श्री अनिल कुमार। ये सभी कर्म योद्धा हैं धनबाद के। इसी क्रम में अगला नाम है श्री नितय कुमार दास, श्री नितय कुमार दास, श्री नितय कुमार दास। इसी क्रम में अगला नाम है मोहम्मद अखलाक अहमद, मोहम्मद अखलाक अहमद, मोहम्मद अखलाक अहमद, मोहम्मद अखलाक अहमद। आप सभी से निवेदन, करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें, आप इनका उत्साहवर्धन करें। इसी क्रम में अगला नाम श्री विमल कुमार बैरवा, श्री विमल कुमार बैरवा, श्री विमल कुमार बैरवा। इसी क्रम में अगला नाम है श्री अजय हरि, श्री अजय हरि, श्री अजय हरि, श्री अजय हरि। इसी क्रम में अगला नाम है श्री निरंजन प्रसाद, श्री निरंजन प्रसाद, श्री निरंजन प्रसाद, श्री निरंजन प्रसाद। इसी क्रम में अगला नाम है सुश्री प्रभावती कुमारी, सुश्री प्रभावती कुमारी, सुश्री प्रभावती कुमारी। एक बार पुनः निवेदन आप सभी से, जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान करें। सुश्री प्रभावती कुमारी। इसी क्रम में अगला नाम है सुश्री वर्णाली मुखर्जी, सुश्री वर्णाली मुखर्जी, वर्णाली मुखर्जी। इसी क्रम में अगला नाम है सुश्री शालिनी कच्छप, सुश्री शालिनी कच्छप। जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान करें, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम सभी स्वस्थ हैं इन्हीं की बदौलत, और इन्हीं के उत्साहवर्धन में हम कमी नहीं करेंगे। और इसी क्रम में अगला नाम है श्री महारथी टुड्डू, सुश्री महारथी टुड्डू, महारथी टुड्डू, जो एएनएम के रूप में कार्यरत हैं, महारथी टुड्डू। On this proud occasion of Independence Day, the district of Dhanbad once again expresses their gratitude towards the selfless service of these Corona warriors. Ladies and gentlemen, as we approach the conclusion of today's ceremony, let us remember to keep alive the spirit of our great heroes and patriots. Let us be brave, selfless, and united like them. Let us always be proud of being an Indian. Let our blood rage to protect our brothers. And let us remember to let our blood rage to protect our brothers and sisters. And let us pledge never to succumb to the enemies of the motherland. Jai Hind!
एक बार पुनः निवेदन मंचासीन अतिथियों से, आज उपस्थित हैं आयुष्मान भारत SNMCH जो कोरोना की संकट परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं। SNMCH आयुष्मान भारत एक निवेदन आदरणीय उपायुक्त महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से हम सम्मानित करेंगे SNMCH के आयुष्मान भारत से SNMCH। कौन है? लेट हो गए थोड़ा ना। हम सम्मानित कर रहे हैं SNMCH के प्रतिनिधि आयुष्मान भारत के। जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान करें। और इसी के साथ मंच की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा की जाती है। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई। नहीं